जी सर, दूसरे सेक्शन में सर। Start. Okay. Good evening, my dear friends. As you know that this is the third class on the topic Prevention of Corruption Act 1988, and everyone knows that corruption is the menace for the society and it must be prevented. And in the previous two classes, I have already discussed its history and its history. So, like for example, in the what was said by the Kautilya, IPC, criminal law ordinance during the British during the Second World War, and after the independence, first law related to the corruption was the Prevention of Corruption Act. Santhanam Committee report like this after discussing. We also discussed reason of the enactment, why it was enacted. Main reason was the Bofors scam at that time, and other reason was this, which we have already discussed. Santhanam committee report we have already discussed. Object of this act, yes, we have already discussed. As you know that the name of the act itself denotes the object of the act. ये बहुत ही क्लेवर आइडिया होता है. अगर बाय चांस अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्ट, किसी भी एक्ट का नाम देखिए, चाहे SC/ST एट्रोसिटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, कोई भी एक्ट का नाम जो है अपने आप ही डिनोट करता है कि हाँ मतलब कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. जैसे मान लीजिए कि अब मेरे बेटे का नाम ह्यूमन है, तो ह्यूमन का नाम क्यों रख दिया, मतलब उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट क्या था? टू सर्व द ह्यूमनिटी. बाकी फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज द अनदर सेंस. इसीलिए किसी भी कानून का नाम जब रखा जाता है तो उसके पीछे एक अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है. जैसे मान लीजिए इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल के बाद हम कोड क्यों लगा दिए, हम एक्ट क्यों नहीं लगाए? तो ये सब हर चीज का एक अपना लॉजिक होता है और कई बार सब क्वेश्चन पूछते रहता है. तो एक्ट के नाम में ही समथिंग कुछ न कुछ रहता ही है. इस तरह की चीजें ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट. तो हमने देखा कि आईपीसी का सेक्शन 21 भी डिस्कस कर रहा था पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग क्या है. और साथ साथ में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो सेक्शन 2C प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का भी हमने देखा. जब हमने इसको देखने के बाद हमने कुछ लीडिंग केसेस डिस्कस किया था उसका, जैसे कि करुणानिधि केस में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स आर आल्सो करप्शन. बीरा स्वामी केस में कहा गया जजेस आर आल्सो पब्लिक सर्वेंट्स. बीपी नारायण नरसिम्हा राव MP and MLA आर आल्सो public servant. Kali Charan Mahapatra, it was also said that the retired public servants also come under the definition of public servant. CBI versus Ramesh Gili, it was also said that chairman, director, officers of the private bank are also public servants. After analyzing all these fields, we have already discussed two cases regarding the previous sanction regarding the section 19. As you know that I think I have not discussed, but tomorrow I will discuss. There are these two leading cases, Manzoor Ali Khan versus Union of India. Although this case is not your syllabus, but this is the landmark judgment in which constitutional validity of the section 19 was challenged on the basis of Article 14 of the Constitution of India. And this question has been asked in the Delhi APU exam. So that's why, do you know, at the time of writing, if I have sufficient time, in that case, I always search the previous year questions paper which have been asked in the competitive exam. If I have not sufficient time, then I concentrate on the competitive on the semester exam. As you know that 2 days I did not take classes seriously. Within those times, I prepared previous year question paper also. Here the Manzoor Ali Khan versus Union of India is the important case. And this is the another case with the Kati Nagesh Sanna versus State of Andhra Pradesh. This is the very landmark judgment. Although case has been decided by the Telangana High Court, but this is the only one judgment which had been decided on the Prevention of Corruption Act after amendment in 2019. एकमात्र एक ऐसा केस है जो कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद 2018 के अमेंडमेंट के बाद एक केस डिसाइड हुआ है.
भले ही हाई कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। जबरदस्त एकदम केस लिखा हुआ है, और जितनी तारीफ की जाए ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा। जनरली मैं हाई कोर्ट का जजमेंट को अवॉइड करता हूँ, हाई कोर्ट का जजमेंट मैं लिखना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल जजमेंट हो तो आप उसे डिनाई भी नहीं कर सकते। उसी में से एक जजमेंट ये भी है जो कि बताता है कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद लॉ पे क्या क्या इफेक्ट आया हुआ है, उसको है। As you know that from the very beginning, I am saying that the Prevention of Corruption Amendment Act 2018 is the most beautiful amendment in the recent time in the law field. जितने भी recent time amendment हुए हैं, उसमें से सबसे मतलब कि प्यारा और lovely amendment ये हुआ है। As you know that about this, I have started here that major amendment in Prevention of Corruption Act was done after 30 years in 2018. As you know that why 30 years? Because Act was enacted in 1988 और 1988 में एक्ट पास हुआ और 2018 में मेजर अमेंडमेंट हुआ। तो माय पॉइंट इज दैट देयर वर सम माइनर अमेंडमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अमेंडमेंट्स वाज 2000 in 2001, amendment was in 2014, but those amendments were minor amendments. But in the major amendments were done after the 30 years, that is the in 2018. This amendment is very relevant, and for this amendment, the government led by revered Mr. Modi ji should be applauded. Why? What is the meaning of revered? सबको मालूम होता है कि revered वर्ड हमने कहाँ से सीखा, बता दूं। आप जब बनारस में जाएंगे तो वहाँ पे नया विश्वनाथ का मंदिर है, विश्वनाथ बाबा का, और वहाँ बीएचयू में जो विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पे उसके फ्रंट पर ही मालवीय जी का लगा हुआ है, स्टेचू लगा हुआ है। वहां पे जो मालवीय जी के सामने जो वर्ड लिखा हुआ है, वहां पे वर्ड लिखा हुआ कि रिवियर्ड मालवीय जी ऐसे करके लिखा हुआ था। वो वर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अप्लाउडेड का मतलब देखो, प्रेज करना एक अलग चीज है, अप्लाउडेड का मतलब तब होता है जब आप ताली बजा करके जब किसी का उत्साहवर्धन करते हैं, तारीफ करते हैं, तो वहां पर वर्ड यूज होता है। तो इस वर्ड थोड़ा सा मैं सीखता हूँ, मेरी अंग्रेजी तो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन सीखने का कंटिन्यू प्रयास करता हूँ। ये दोनों मुझे वर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक लगे, इसलिए मैंने लिख दिया। So this amendment is very relevant, and for this government led by revered Mr. Modi ji should be applauded. These are the following salient features of this amendment. मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इसी को आप कहिए कि सर फेसबुक पे लिख दीजिए, तुरंत मोदी जी के खिलाफ ही लिखूंगा। Because Facebook and class both are totally different things. But whatever we are discussing in the class, we are discussing in academic field, and that's why if things is good, we should appreciate, and if it is bad, we should criticize. So that's why this is the most beautiful amendment. Come to the definition is that some definitions were inserted. First, there were 7 points which, and for the time being, if want to ask the question paper in your semester exam, sir, whether any question was based on this amendment or not. Yes, of course, there was a question which were based on this amendment. Although nature of the question was something different, but this was the based on this. Here the amendment it says that what actions of public servant amount to criminal proceeding, enumerate the changes made in section 19 of the amendment to Prevention of Corruption Act. यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है, मैं टाइप शायद नहीं कर पाया हूँ या जो भी हो। यहाँ पे होना चाहिए कि enumerate the changes made in section 19 by the amendment act in 2018। जो 2018 का अमेंडमेंट है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 19 में क्या चेंजेस हुए हैं, वहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लिक करता है। तो मतलब ठीक है कि क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अमेंडमेंट इन सेक्शन 19 by the 2018 amendment, but as you know that we are not discussing for the semester exam or for the competitive exam. We are reading and searching and enhancing our knowledge for the competitive exam as well as for the inner consciousness. हम लोग पढ़ते हैं इनर कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा खुश हो जाएगा, हाँ बेटा तुमने पूछा पढ़ा है। The first point is that some definitions were inserted. Here section 2A by the section by 2AA prescribed word has been defined. By section 2AA prescribed word has been defined,
and by this amendment section 2D was inserted. Section 2D was inserted. It means by this amendment prescribed and undue advantage words were inserted in the definition of section 2 of this particular act. Okay, it means earlier what were the provisions in section 2? There were in section 2, 2A, 2B, 2C. But now what is the position? 2A, 2AA, 2B, 2C, and most important thing is that 2D. It means now 2D word had been defined under the definition act. As you know that whenever we discuss the section 16 of the Indian Contract Act, at that time we use the undue influence. At that time under section 16 of the Contract Act, what word we use? Undue influence. It means there is a difference between influence and undue influence. Suppose that I am a teacher of the Achilles. It means of course I have created some influence over the Achilles. So that is creating the influence over the Achilles is not the wrong things. But once I creating that influence for the purpose of undue advantages, that will be an offense under this act. So my point is that whenever I will discuss the definition in the later class, I will divide the undue advantages into I will divide the advantage into two parts. First is that advantage. Taking the advantage, it is a common sense, no problem. But taking the undue advantages is a crime. Suppose that I have problem in the language and send in the group and made some request, and I told you that the Sakshi make some corrections and send me. I want to improve my knowledge. I want to improve my writing. And Sakshi, after making the corrections, she send me. It means I had taken the advantage from the Sakshi. But this is not the crime. Why? Because this is simple advantage. But suppose that Parth is saying, Parth is saying, sir, please see my attendance. There is shortage of attendance. But I told you that no. In the free of cost attendance is not possible. You have to say something. It means I am taking the undue advantages. It means I will discuss what is the meaning of undue advantage at the relevant time. At that present time, I'm not going to discuss thoroughly this time. Okay, my second point is the time limit trial. This is the most beautiful amendment which has been done in the this particular through this particular amendment. As you know that in our law is perfect in several areas. Law is a perfect, but problem is that regarding implementation of law. As for example, Mr. Achilles was saying that there was some problem and FIR was not registered. Yes, law is that if the crime is committed, FIR will be registered. This is the part of the law. But what is the part of the implementation? On the side of the part of implementation, it is a duty of authority to register the FIR. So my point is that regarding the point of law, we are not facing much more problem because we have sufficient law. We are facing problem on the point of the implementation of law. Okay, that's why in this point what was done by this act, as you know that in this part you have to read section 4, which sections deals about the time limit trial. Section 4 deals about time limit trial. In this case you have to remember four things. First thing is that day by day hearing must be day by day. मतलब एक हम लोग देखते हैं ना कि उस मूवी का था क्या नाम था उसको, जिस तारीख पे तारीख, एक डायलॉग है ना सनी देओल का, दामिनी। हाँ, दामिनी मूवी का एक डायलॉग था, आपने देखा होगा कि तारीख पे तारीख का जो डायलॉग है वो वाला डायलॉग इसमें नहीं चलेगा। कह रहा है कि आपको डे बाय डे आप हियरिंग करनी पड़ेगी, तारीख पे तारीख इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट मींस वंस ए मैटर इज कम बिफोर यू, you have to endeavor to conduct the trial day by day without any delay. As you know that if you read the section 309 of the CRPC, even in that sections, I hope that it has been mentioned that trial must be conducted day by day. श्योर तो नहीं हूँ लेकिन 99.9% मेरा उम्मीद है कि CRPC के सेक्शन 309 में बात लिखी हुई है कि ट्रायल डे बाय डे होगा। एक बार तो क्लास चेक कर लेना। हाँ, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक, अर्जेंट नहीं है ना? ठीक, ओके, नमस्कार।
इन दैट पॉइंट सेक्शन 309 में एक बार लिखा हुआ है कि ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड डे बाय डे, क्योंकि हम लोग शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे उसके सेक्शन के बगल में लिख देते हैं कि तारीख पे तारीख वाला डायलॉग नहीं चलेगा, वो होगा एक बार तुम सब क्लास चेक कर लेना, मैं नहीं हूँ। Day by day, is section 4 say that what was substituted? Section 4 was substituted. It means although section 6 is from the very beginning, but section 4 is from the very beginning, but this section was substituted in 2018. मतलब ये रहा कि बॉडी तो इसकी एज इट इज बनी रहेगी, लेकिन इसका जितना इंटरनल पार्ट्स था सब कुछ चेंज कर दिया गया। सेक्शन 4 पहले भी था, अब भी है, लेकिन उसके मेन बॉडी का जो कंटेंट है पूरे कंटेंट की ओवरहालिंग कर दी गई, मतलब पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेक्शन 4 सब्स्टिट्यूटेड लिखा हूँ। इस सेक्शन के अमेंडमेंट को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अमेंडमेंट करने की जगह पुराने वाले सेक्शन को बल्कि पुराने वाले एक्ट को रिपील कर देना चाहिए था और नया एक्ट ही ला देना चाहिए था, ताकि इतना कंफ्यूजन ही नहीं रहता। फिर भी जो भी हो, तो सेक्शन 4 वाज सब्स्टिट्यूटेड, and first thing and most important thing, it was said that day by day trial must be conducted, and endeavor must be done to complete the trial within 2 years. Trial must be completed within 2 years. It is a normal and standard time. But in the extraordinary circumstances, you can exceed time. You can take more time, but at one time, how much time you can exceed? At one time you can exceed only the 6th month. मतलब मान लीजिए कि हमारे लड़की उड़की या किसी का नाम तो याद हो नहीं रहता है, वो देखता हूँ मैं रुक जाऊं, क्योंकि शिवानी तो कई हो जाती है, शिवानी का नाम लेना छोड़ दिया हूँ। वो 2-3 लड़की, चलो मान लीजिए साक्षी कोई मान लेते हैं। तो my point is that here, suppose that Sakshi has become judge, and what happened? It is a duty of her that trial must be conducted day by day. She was doing hearing, and even after the completing of 2 years, she was not able to pronounce the judgment. What is her duty further? It means she has been empowered to extend the time up to which extent she can extend the time. Up to 6 months she can extend the time. But suppose that even after the 6 month का मतलब 2.5 साल हो जाएगा, even after exceeding the 6 month, she needs more time to further hearing. Again she may extend. अब दोबारा उसने एक्सटेंड कर दिया 6 महीना, 6 महीना पहले एक्सटेंड किया, 6 महीना दोबारा एक्सटेंड कर दिया, तो कितना हो गया टोटल? 1 साल एक्सटेंड हो गया और 2 साल ओरिजिनल था, 3 साल हो गया। अब उसको लगता है कि नहीं और टाइम चाहिए, चल भाई और बढ़ा ले। अब और टाइम उसने बढ़ा लिया तो 6 महीना और बढ़ा दिया, तो कितना साल बढ़ा दिया उसने? 1.5 साल बढ़ा दिया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3.5 साल हो गया। अब उसे लगता है कि और टाइम बढ़ाना चाहिए, ठीक है भाई बढ़ा लो, उसने और टाइम बढ़ा लिया। अब उसने क्या किया कि इस तरह से 4 बार बढ़ाया टाइम, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, टोटल 2 साल उसने बढ़ाया है। 2 साल ओरिजिनल था, 4 साल इसने कंप्लीट कर दिया। अब 5वीं बार भी इस टाइम को बढ़ा दूं, मतलब 6 महीना और बढ़ा दूं। अब अगला वही है कि अब और नहीं, अब और नहीं, अब इतना ही जो भी है अब काफी है, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर्स, 4 ईयर्स से किसी भी मामले में एक्सीड नहीं करना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग ऑर्डरली 4 ईयर्स इन एग्रीगेट, मतलब कि तुम्हारे पास डे बाय डे का हियरिंग का टाइम दिया गया है, जनरली तुम 2 साल में कंप्लीट कर लो, तुम्हें टाइम बढ़ाने की जरूरत है तो तुम 6 महीना के ही हिसाब से बढ़ा सकती हो। अगर बढ़ा भी दी तो टोटल मिलाकर के 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 साल से ज्यादा अगर हो रहा है तुम्हें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अब तुम्हें जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ेगा या डिसीजन देना पड़ेगा, और फिर भी अगर नहीं कुछ कर पा रही हो तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छा मुझे जजमेंट लगा टाइम लिमिट ट्रायल का। अब आप पूछेंगे कि अच्छा क्यों लगा सर, आप इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? इसकी तारीफ करने का एक रीजन मैं देखा हूँ, जैसे इसमें दोनों है। अब करप्ट पॉलिटिशियंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पॉलिटिशियन ही नहीं, इवन द ऑर्डिनरी पर्संस, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस पर्सन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब एक इनोसेंट पॉलिटिशियन है और एक हार्डकोर क्रिमिनल है।
अब इनोसेंट पॉलिटिशियन को क्या फायदा होगा? इनोसेंट पॉलिटिशियन का होगा कि भाई पब्लिक लाइफ में है, कोई भी उसके खिलाफ एलिगेशन लगा सकता है, डिसीजन हमेशा लेने पड़ते हैं, और जब भी डिसीजन लोगे तो एक आदमी के फेवर में जाएगा, एक आदमी के खिलाफ में जाएगा। जैसे इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि मोट कोर्ट के प्रॉब्लम में यही हुआ। मोट कोर्ट के प्रॉब्लम में मुझे दिया गया कि मोट कोर्ट में जज करिए। अब एक लड़का था, वो मैं जानता पहचानता था, मैं बता भी चुका हूँ तुम लोगों को कई बार। अब उसने आया पैर और छू लिया पहले से जो भी था, वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी था, उससे मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी थी, और एक बच्ची थी फर्स्ट ईयर की थी। अब उसे उम्मीद था कि हमारा हो जाएगा, उसको ऐसा लगता था कि सर हमारे जान पहचान के हो जाएगा। तो अब उसे क्या था कि बाहर जाकर के किसी यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करना था। अब उसने बोला ही नहीं, और हमने को वो कर दिया, मतलब बार कर दिया, मतलब कहा कि नहीं वो नॉट सुटेबल, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि वो बातचीत करना बंद ही कर दिया, फेसबुक से भी उसने रिमूव कर दिया, मतलब जितना मैक्सिमम वो कर सकता था उतना किया। क्या हमारे कहने का मतलब है कि जब भी पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में जब आप जीते हैं, अब हम लोग भी पब्लिक सर्वेंट ही हैं, कहीं पर भी रहेंगे तो आप जब डिसीजन लेंगे तो आपको बाधाएं आती रहेंगी, आपको मेंटली फिजिकली इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमारे खिलाफ वो एफआईआर ही करते हैं किसी बात को लेकर के, अगर हमारे पास टाइम लिमिट रहेगा कि भाई 2 साल के भीतर इसकी हियरिंग हो जाएगी, तो हम अगर इनोसेंट है तो हमें मैक्सिमम कितना साल तक झेलना पड़ेगा? मैक्सिमम 2 साल ही तो झेलना पड़ेगा ना। अदरवाइज टाइम में लिमिट अगर न रहे और 10 साल चले, तो मैं तो 10 साल बदनामी में जीता रहूंगा। 10 साल बाद डिसीजन आएगा कि हाँ इनोसेंट था, तब तक तो मेरी 10 साल की लाइफ खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो इनोसेंट पॉलिटिशियंस हैं या इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट है उनको बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात हार्डकोर क्रिमिनल की। अब हार्डकोर क्रिमिनल में क्या होगा? हार्डकोर क्रिमिनल के रिगार्डिंग, अब क्रिमिनल क्या करते हैं, जैसे आप कई एग्जांपल हैं और एक एग्जांपल तो सब लोग जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर्डर स्कीम का जब मैटर आया हुआ था, तो फॉर्डर स्कीम 19वीं सेंचुरी के आसपास में आ चुका था, शायद मैं तो बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन 90 91 के दौर आते आते मैटर आ चुका था, फॉर्डर स्कीम का आ चुका था। अब 1991 की घटना को चलते चलते अब कहाँ पहुंचा है घटना, मतलब हमें लग रहा है कि 17 18 में जाकर के जजमेंट आया होगा। और 17 18 की जजमेंट आने के बाद मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, जजमेंट तो मैं लिख रखा हूँ, थोड़ा सा डेट का मुझे वो लग रहा है मुझे। अब मान लीजिए कि 18 में जजमेंट आया है, तो अब बताइए कि अब से उनको जेल, मतलब मिस्टर लालू यादव को अब से जेल में रहना पड़ रहा है। अगर यही डिसीजन अगर 2 साल पहले हो गया होता, अगर इस तरह का डिसीजन 2 साल पहले हो गया होता, मान लीजिए कि 90 की घटना होती, 2 साल में डिसीजन हो गया होता, 2 साल में कन्विक्शन हो गया होता, तो शायद बाकी पॉलिटिशियंस के लिए एक एग्जाम्पल होता, और उनको अभी क्या होता है कि 20 से 25 या 30 साल तक आदमी को जेल में रहना पड़ जाता। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर एग्जाम्पल होता। और एक बात यह होती है कि जब एक आदमी करप्ट होता है ना, तो उसकी एक हैबिट बन जाती है, तो फर्दर भी करते रहता है जहां पर भी जैसे भी रहता है। तो इस तरह का हमारे कहने का मतलब है कि अगर टाइम लिमिट के भीतर अगर कन्विक्शन होगा, तो कोई भी करप्ट आदमी होगा उसके लिए एग्जाम्पल होगा। जैसे एक बार क्या हुआ था कि शशिकला और जयललिता दोनों लोग, सबको मालूम हुआ, बोथ फॉर द पॉलिटिशियंस इन द साउथ इंडिया, इसमें इन तमिलनाडु, एंड बोथ बिलोंग्स फ्रॉम द AIADMK पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ कड़गम व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971। अब हुआ क्या कि दोनों को केस के चार्जेस लगे। अब केस तो लग गए बहुत चार्जेस, केस डिसाइड होते होते 18 19 का टाइम आ गया, सर 18 18 का टाइम आ गया। अब जजमेंट आने से पहले, फाइनल जजमेंट आने से पहले, मुश्किल से 2 महीना पहले ही मिस जयललिता का डेथ हो गया। अब मिस जयललिता का डेथ हो गया, सीआरपीसी का प्रोविजन कहता है, शायद सेक्शन 394 है, 394 ही होगा या 92 होगा, थोड़ा सा मैं देख लेना। 394 का प्रोविजन कहता है कि अगर अपील पेंडिंग है, अगर अपील पेंडिंग है और एक्यूज का डेथ हो जाए, 394 का देख लेना, अपील पेंडिंग है और डेथ हो जाए एक्यूज का, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग अबेट कर जाएगी। अबेट का मतलब खत्म हो जाएगी। अब हुआ क्या कि मिस जयललिता के खिलाफ 1 महीना पहले डेथ होने की वजह से प्रोसीडिंग अबेट हो गई, और उन्हीं के साथ शशिकला का जो कन्विक्शन, शशिकला का जो केस चल रहा था, और शशिकला का कन्विक्शन हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर जयललिता, अगर केस 2 साल के भीतर डिसाइड हुआ होता, तो मिस शशिकला के साथ साथ, सॉरी मिस नहीं होंगी, वो मिसेज होंगी, मिसेज शशिकला के साथ साथ मिस जयललिता को भी जेल की हवा खानी पड़ती। और जो पॉलिटिशियन आप मर जाते हैं कि ना बहुत ही वो थे, कभी करप्शन नहीं किए, ये वो जो 50 चीजें हैं, वो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह का जो टाइम लिमिट है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप करप्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 25 साल पॉलिटिक्स करिए, पब्लिक लाइफ एंजॉय करिए,
और इसके बाद जब सजा सुनने की बात आए तो जाकर के रेस्ट लीजिए, मेडिकल रिलीफ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इसलिए मुझे बहुत जजमेंट अच्छा लगा। ये इनोसेंट पर्पज के लिए, इनोसेंट पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो हार्ड कोर क्रिमिनल है, जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही मैसेज जाता है। ठीक ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोग पढ़ लेना और सोच लेना, अपने अपने हिसाब से अपने सोचने समझने का सबका तरीका होता है। Come to the point here is that bribe taking is a punishable offense. Bribe taking is a punishable offense. As you know that bribe taking is a punishable from the very beginning. It is not the new things. It is the very beginning. And as you know that the section 7 was substituted and 7A was inserted. And by these provisions, some new things and some definitions was widened by the government. And something is that this is the, but in the brief, we can say that it talks about by this amendment, punishment was enhanced, and now bribe taking is punishable. It was earlier punishable, even today is punishable, but punishment of this has been enhanced. Most important and two new things, which is the very good things for the development of the country. Point number 4 and 5. Point number 4 and 5 is the very good things. As you know that the earlier here the why which points I want to discuss. I want to discuss section 8 and section 9. Section 8 and 9 already there were earlier, but even these sections were substituted. So my point is that section 7, 8, 9, 10, all these four sections were substituted. That's why there is no need to say that section 7 was substituted, 8 was substituted, 9 was substituted, 10 was substituted. No, you can presume that yes, sir, want to say that these sections were substituted. So my point is that here the giving bribe is punishable except the, yes, I want to say that earlier giving bribe was not punishable. And even in some cases it was punishable, but law was not crystal clear. There was much more doubt regarding this. But by this amendment, now law is certain, very crystal clear, and say that if any person who is giving the bribe is the, he is also being punished. इसका मतलब क्या है कि आज के डेट में घूस लेना और घूस देना, मतलब गिविंग एंड टेकिंग ब्राइब, बोथ आर पनिशेबल एट द इक्वल फूटिंग। आर गेटिंग पॉइंट्स? देना और लेना दोनों ही पनिशेबल है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए डीयू की वैकेंसी निकल गई, अब किसी को लग रहा है यार असिस्टेंट प्रोफेसर का हमें कैसे सिलेक्शन मिलेगा, अब उसे लगता है यार सिलेक्शन मिलेगा तो कैसे मिलेगा, तो ठीक है चलो 50 लाख देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने किसी को 50 लाख घूस दे दिया, अब घूस दे दिया और उसने बाद में आपका अपॉइंट किया कि नहीं, आपका उसने डिनाई कर दिया। जब उसने डिनाई कर दिया तो आपने सोचा कि नहीं हम केस फाइल कर दें कि नहीं भाई हमने 50 लाख तुम्हें दिया था, हमें वापस करो और तुमने घूस लिया था। आप जैसे उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे कि हाँ हमने 50 लाख नौकरी के लिए घूस दिया था, पहली एफआईआर आपके खिलाफ होगी। सबसे पहला एफआईआर आपके खिलाफ होगी, उसके खिलाफ एफआईआर होगी नहीं होगी वो तो अलग चीज है, वो तो बाद की बात होगी, लेकिन सबसे पहला एफआईआर आपके ऊपर हो जाएगी। 1 मिनट देख ले रहा हूँ, कोई सब ज्वाइन कर ले रहा है ना। आज मैं एक स्क्रीनशॉट करना सीखा हूँ, करके देख ही लेता हूँ। हो गया ग्रुप एकदम चौक। So my point is that is the important thing. The point is that giving bribe is punishable, except only one circumstances when you are giving the bribe, but you will not be punished. So what are those circumstances? जैसे मैं देखो तुम लोग तुम्हारे बच्चे हो, बच्चे का मतलब जो भी हो, तुम लोग भी सोचते हो कि नहीं सर से ज्यादा हमें नॉलेज है भी, हम एक्सेप्ट करते हैं हमेशा। तो लेकिन होता क्या था, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या कहा जाता है कि भाई बिना जुगाड़ के, बिना सोर्स के, बिना पैसे दिए तो नौकरी लगती ही नहीं है। ऐसे ही होता है, बिना पैसे नहीं दोगे तो नौकरी लगेगी नहीं, ये कॉमन फिनोमेना है, सबको मालूम है, ऐसे ही लोग सोचते हैं। लेकिन देखो हमारा कंडीशन तो शायद तुम जानते भी हो नहीं भी जानते हो, हमारी कंडीशन ये है कि न पहले भी खाने से ज्यादा कुछ था न और आज भी है। एज सिंपल है, हम लोग का जितना भी सिलेक्शन हुआ है एकदम प्योर एंड
फाइनल है, कहीं पर भी नहीं है। हाँ, एक बार लोग कहते हैं कि नहीं आपका सिलेक्शन हमारा 3 जगह हुआ था, एक यूपीएससी में हुआ तब भी मोदी जी थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीयू में हुआ तब भी मोदी जी थे। हाँ, जब यूपी में हमारा सिलेक्शन हुआ था तब मिस्टर अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अब हुआ क्या कि उसका भी मैं बता दूं, उसमें हुआ क्या कि सबका सिलेक्शन हो गया, मेरा 25वां रैंक आया हुआ था। अब लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसी समय मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक क्लेम था कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में रहते हुए यादवों की वैकेंसी में वो किया, प्रमोट किया है, और वो हाई कोर्ट में मैटर भी चला गया। तो अब मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी जांच करवाई। जांच करवाने के बाद मेरा नंबर बढ़ गया। मतलब समझिए कि अगर करप्शन हुआ होता मेरे मामले में, हम ये नहीं कहते कि नहीं, हम पूरी वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि भाई क्या है कैसे नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरे बारे में जब जांच हुई थी तो उसमें से पहले हमारे कम नंबर बन रहे थे, लेकिन जांच के बाद हमारे नंबर बढ़ गए। तो हुआ क्या कि हमें पहले 25 रैंक बन रहा था, और जांच होने के बाद नंबर बढ़ने की वजह से हमारा 22 रैंक बन गया। तो उसकी वजह से हमें इधर उधर भटकना पड़ता, इसलिए रैंक चेंज होते ही हमें पहला प्रेफरेंस बनारस का था, और हमने बनारस मिला और हमने ज्वाइन भी कर लिया। तो एटलीस्ट तो हमारे बारे में आप कोई नहीं कह सकता कि नहीं यादव जी के होने की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो हमारा मार्क्स घटना चाहिए था, न कि बढ़ना होना चाहिए था। तो तुम सब भी एक माइंड में बना करके चलो कि सरकारें आती है जाती हैं, 10% इधर उधर होता है। तुम गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे माइंड में जोर है तो तुम कहीं भी सिलेक्शन पा जाओगे। योगी आदित्यनाथ आए चाहे अखिलेश यादव आए चाहे कोई भी आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज है। तो इसमें ये था, पहले जनरली होता क्या था कि खासतौर से यूपी में होता भी है, हम ये डिनाई नहीं करते, जिसके पास पैसा वो देता भी है। यूपी हायर एजुकेशन में 20 लाख 25 लाख पहले भी लोग देते थे, अभी भी देते हैं, और इस बार भी दिए हैं। 2-3 लोगों को मैं खुद जानता हूँ, इस बार दिए हैं यूपी हायर एजुकेशन में, चल रहा है जो भी है। तो इसमें क्या, बाई चांस आपने दिया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप मांग सकते हैं या क्या उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों 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 ऐसा फिलॉसफी आया? क्योंकि ये माना गया कि करप्शन देने का, पैसा देने का दिमाग किस में आया? सबसे पहले तो आपके ब्रेन में आया ना। उस करप्शन को देने के मामले में ब्रेन चाइल्ड कहाँ है? आपका दिमाग है। आपके दिमाग में आया कि हम चल करके उस उससे मिले, उस प्रोफेसर से मिले, उस एक्सपर्ट से मिले, उस जज से मिले, चल करके हम 20 लाख 25 लाख का ऑफर दें। तो आप ऑफर देने वाला कौन था? ऑफर देने वाले तो आप थे। जब आप जा करके जब आप किसी को इंड्यूस किए हैं, आप भी तो इंड्यूस ही कर रहे हैं कि हाँ सर ले लीजिए और हमारा सिलेक्शन करिए, तो आपकी भागीदारी क्यों नहीं बननी चाहिए? आपके खिलाफ क्यों नहीं क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए? तो इस तरह से बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि आप पैसा लेकर के आप किसी को इंड्यूस करने जा रहे हैं, या कल को कोई बात हो जाती है तो अगर आप एफआईआर कराने जाएंगे, सबसे पहला एफआईआर आप लोगे। हाँ, इसके निगेटिव में लोग कहते हैं कि निगेटिव में ये होगा कि लोग घूस देंगे और बताएंगे भी नहीं। तो वास्तव में जो घूस देंगे क्यों बताएंगे? मत बताइए भाई, जो करना करिए आप। तो इस तरह की चीजें हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, एकमात्र एक्सेप्शन है कि जब कंपलसरी घूस देंगे तो उसमें आपको सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ लेने वाले को सजा मिलेगी। अब कंपलसरी गिविंग ब्राइब क्या होता है भाई? तो देखो, कंपलसरी गिविंग ब्राइब, सपोज दैट माय चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, I am a very poor person. I can't go to the प्राइवेट हॉस्पिटल। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारे पर्सनल बात है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल दिल्ली में फ्री है, हम कहीं भी जाकर के दिखा लेते हैं। यहाँ तक कि मैक्स हॉस्पिटल भी आप लोग नाम सुना होगा, प्राइवेट है। अगर वहां पर भी हम अपना इलाज कराएं या बच्चे का इलाज कराएं, किसी का भी कराएं, तो एक भी पैसा लगना नहीं है, सब कुछ फ्री में ही है। ये यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी है। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए गरीब आदमी है और कोविड-19 का दौर चल रहा है, और उसने कोविड से सफरिंग हो गया, अब सरकारी हॉस्पिटल में गया। अब वो कह रहा है कि भाई साहब हमारे बेटे को कोविड हो गया, अब इसको एक बेड दिला दीजिए। अब वो होता है क्या, डॉक्टर तो बेड नहीं दिलाता है, डॉक्टर तो डॉक्टर का काम करता है, क्लर्क सारा काम देखता है। क्लर्क कह है कि भाई देखिए पेंडेमिक टाइम है और हम इसमें बेड खाली नहीं है। आप कहते हो कि नहीं खाली है, मैं देखा हूँ, कहा गया ऐसे नहीं खाली है, कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। आपने कहा बताइए। उसने कहा कि भाई 10,000 दो। तो आपने कहा ठीक है भाई, बच्चे को बचाने के लिए तो बाप कुछ भी कर जाएगा। आपने उसको 10,000 दे दिया। 10,000 ले लिया उसने, सीट बेड अरेंज करके आपके बेटे को अरे वो करा दिया, ट्रीटमेंट चलना शुरू हो गया।
आपने 10,000 घूस दिया है, आपके मन में गुस्सा है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर 7 दिन के भीतर इन्फॉर्म करते हैं या पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि हमने इस व्यक्ति को 10,000 घूस दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अगर मैं इसको नहीं देता तो हमारा बेटा एडमिट नहीं होता हॉस्पिटल में, और उसकी वजह से हमारे बेटे की जान चली जाती। तो हम अपने बेटे को जान बचाने के लिए घूस दिए हैं, दैट इज द कंपल्सरी घूस है, कंपल्सरी ब्राइब है। अगर 7 दिन के भीतर अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया, तब समझ लीजिए कि आपके ऊपर केस नहीं चलेगा, सिर्फ घूस लेने वाले के ऊपर ही चलेगा। लेकिन मान लीजिए 7 दिन बीत गया, आपने 10वें दिन आपने वो किया, पुलिस स्टेशन गए, और 10 दिन बाद बताते हैं कि मैं मतलब 10 दिन पहले गया था हॉस्पिटल में और ऐसा ऐसा हुआ था, मैं 10,000 ऐसा घूस दिया था। तो सबसे पहला एफआईआर आपके ऊपर रजिस्टर्ड होगी, इसके बाद जो क्लर्क लिया है उसके खिलाफ रजिस्टर्ड होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपल्सरी गिविंग ब्राइब का एक ही रिलैक्सेशन है कि आपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को विद इन 7 डेज के भीतर आपने इन्फॉर्म कर दिया हो कि हाँ भाई इस तरह का मैटर हुआ है, तभी। अदरवाइज आप डिले कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि काम निकल जाए, काम निकल जाए, काम निकल जाए, काम निकलने के बाद इसको सबक सिखाऊंगा, तो नहीं, ऐसे काम निकलने के बाद आप सबक नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी लालच है कि चलो यार जितना देना है घूस दे करके काम निकालने, या जैसे भी वो काम निकालने बाद में इसको सबक, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गिविंग ब्राइब इज द पनिशेबल, यस दिस इज द गुड, बिकॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ गिविंग द brain child of bribe is the brain of the giver. And second is that compulsory giving bribe, that is the also good things, and within 7 days period must be given. एक बात और बता दूं, जब ये लोकसभा में डिबेट में चल रहा था तो मिनिस्टर साहब ने इसका रिप्लाई किया था। तो मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन रेज किया गया था कि भाई जो विद इन 7 डेज का टाइम है इसको बढ़ा दीजिए, कि वो 7 डेज के टाइम में मान लीजिए कि बेटा हॉस्पिटल में रह गया 7 दिन, 10 दिन हॉस्पिटल में रह जाए, तो उसको तो डर है ना कि अगर हम कंप्लेन करने के लिए जाएंगे उधर तो तुरंत क्लर्क क्या करेगा कि हमारे बेटे को निकाल के बाहर ही कर देगा, जाओ भाई कंप्लेन करो, हमारे खिलाफ जो एक्शन होगा देखते रहेंगे। तो उसमें कहा गया था कि नहीं, इसको टाइम कुछ और बढ़ा दीजिए। उन्होंने रिप्लाई किया था, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भेज भी दूंगा, सुन लीजिएगा। उन्होंने उसमें कहा गया था जो हम रूल बनाएंगे उस रूल में इसको रिलैक्स करके बढ़ा देंगे। अब क्या रूल उन्होंने बनाया उसके रूल के बारे में तो हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन फ्रॉम द यहाँ डेट लिखा हुआ है कि 7 दिन कब से काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिलहाल तो इसमें अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो यही है कि फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग अप सच अनडू एडवांटेज, जिस दिन से आप पैसा दिए हैं उस दिन से 7 दिन काउंट होगा। अब मिनिस्टर साहब ने या गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया है, सॉरी मैं उस रूल को नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन फिलहाल एक्ट में तो यही है। अब एक एग्जाम्पल भी इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया था कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि पी है, पी जैसे किसी को भी मान लेते हैं, पी को मान लीजिए कि प्रशांत ही मान लेते हैं। पी 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 ने क्या किया, यश को, यश मान लीजिए कि शेखर है, पी ने प्रशांत ने यश से कहा कि भाई एक हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो, हम दिल्ली में हैं और बनारस और गाजीपुर हम आ जा नहीं पाएंगे, एक ड्राइविंग लाइसेंस बना दो। अब यश ने कहा कि भाई तुम तो दिल्ली में हो, तुम ड्राइविंग टेस्ट तुम्हारा कैसे होगा, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं बन पाएगा। तो पी ने कहा कि ऐसा है ना कि देखो फिलॉसफी मत दो, नॉर्मली 2,000 लगता है, लेकिन हम कितना देंगे तुम्हें, 10,000 देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का जब बनवाने जाओगे तो फीस 2,000 लगती है, कहा कि नॉर्मली 2,000 लगता है, लेकिन हम कितना तुम्हें देंगे, 10,000 देंगे, और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाना चाहिए। और वो भी किसका बनना चाहिए, 2 चक्का का नहीं, 4 चक्का का, मतलब कि 4 व्हीलर का बनना चाहिए। और जबकि 2 व्हीलर भी नहीं चला पाता है, प्रॉपर वे में 2 व्हीलर भी नहीं चला पाता है, लेकिन उसको ड्राइविंग लाइसेंस किसका चाहिए, 4 व्हीलर का चाहिए। और भी दिल्ली में बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ का चाहिए, गाजीपुर का चाहिए, मतलब बनारस के साइड बनारस का चाहिए। अब पी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए कि ना लिया जाए, अब क्वेश्चन है कि पी ने कोई क्राइम किया कि नहीं। ऑफ कोर्स पी ने तो क्या क्राइम किया, उसी के दिमाग में था कि हमारे पास पैसा है, हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो पी ने क्राइम किया और साथ साथ में यश ने भी क्राइम किया, लेकिन ये इलस्ट्रेशन सेक्शन 8 का है, इसीलिए पी के बारे में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर हम
सेक्शन 7 और 8 को कंबाइंड रीडिंग डाल दें तो ये कहेंगे कि P इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 एंड यस इज गिल्टी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 7। तो मतलब कि 7 और 8 को मिला दोगे तो गिवर और टेकर ब्राइब दोनों वहां पे सजा मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा है कि गवर्नमेंट को भी मालूम है, वो गवर्नमेंट को कितना ग्राउंड रियलिटी मालूम है। गवर्नमेंट को मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर इस काम में कहीं होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में तो पक्का मतलब कि घूस चलता है, पक्का। क्योंकि मैक्सिमम लोग, तुम लोग भी ड्राइवर हो गए, टू व्हीलर नहीं चला पाते हो, लेकिन जब भी एक आदमी बनवाता है तो क्या करता है, सीधे कहता है यार काहे बार बार बनवाना पड़ेगा, एक के बार तुम हैवी गाड़ी का बनवा दो, फोर व्हीलर का बनवा दो, कि बाई चांस अगर खरीदने को मिल जाए या किसी के चलाने का मिल जाए, थोड़ा बहुत राउंड में तो घुमा ही दें। तो यही है, तो गवर्नमेंट ने इसी का एग्जाम्पल दिया भी है। अब चलो अगले मूव करते हैं। भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है कि सिर्फ हम मजाक बना रहे हैं? कब आ रहा है अरे सर। आ रहा है। हाँ, देखो हम तो तारीफ सुनने में माहिर आदमी है, जब तो तारीफ न सुने तो पढ़ाने का मजा ही क्या है। नहीं, ऑनलाइन में क्या होता है ना, मशीन की तरह स्टार्ट हो जाए, मशीन की तरह बोलिए, ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं कर रहा है। और ऑफलाइन में होता था थोड़ा बहुत आदमी इंटरटेनमेंट करता था, प्रेशर कम रहता था। एक तो रिकॉर्डिंग डाल करके यूट्यूब पे डालने का और झंझट दबाव है कि इधर उधर मत बोलिए। अरे काहे ना बोले, जिसको सुनने का मन करेगा सुनेगा, नहीं सुनने का मन करेगा तो फॉरवर्ड कर देगा। इसलिए काम प्रेशर में नहीं लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। Come to the point here is that bribery given on behalf of commercial organization. This is the extraordinary. This is another nice point which have been mentioned in this amendment. As you know that suppose that Reliance company, Reliance is a big company, Adani Group is a big company, Tata, Birla, these are the group company. So what happened? Earlier there was the person was punished, person was imposed the fine. मान लीजिए कि हमारी नौकरी लग जाए रिलायंस कंपनी में, हमारी सैलरी कितनी है, 50,000 है। अब हमें गलत काम करवाने के लिए सैलरी तो भले ही हमारी 50,000 है, लेकिन हम इतना अथराइज हैं कि कंपनी की तरफ से 100-200 करोड़ हम दे सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तो क्या हुआ था, स्पेक्ट्रम घोटाला या इस तरह का जो होता है यही सब होता है ना। तो छोटा सा ऑफिसर हूँ, लेकिन घूस देने के मामले में कंपनी की तरफ से 2 करोड़ दे दूंगा और सैलरी हमारी 50,000 है। चलो मान लिया कि हमने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट लेने के लिए, मान लीजिए कि लखनऊ का हमें एयरपोर्ट, आपने अडानी को देखिए अब चला गया, कल ही चला गया, हैंड ओवर हो गया। तो अब मान लीजिए कि अब हमें चाहिए एयरपोर्ट चाहिए, तो हम जी सर, ऑफिसर तो लखनऊ। बात, हाँ क्या वाटर से, ओके लीव इट। तो मान लीजिए नहीं कि सर, अब बोल हम रहे तो, थे लखनऊ वाला एयरपोर्ट सर, हाँ कंटिन्यू कीजिए। लखनऊ, ओके ओके। अब मान लीजिए कि अब हमने तो कर तो दिया, अब अडानी जी या रिलायंस जी के तो हेड तो जाएंगे नहीं, हमें को सारा करना है, मैं कर दिया। मान लीजिए करप्शन पाया गया, तो पहले क्या होता था कि जब इंडिविजुअल पर जब आप करप्शन के चार्ज लगाते थे और फाइन इम्पोज करते थे, तो मुश्किल से कितना इम्पोज करेंगे आप। अब इंडिविजुअल की सैलरी है 50,000 बेचारे की सैलरी है, अब मैक्सिमम इम्पोज कर दोगे, मैक्सिमम इम्पोज कर दोगे तो 1 करोड़ इम्पोज कर दोगे। चलो भाई अपना किडनी उडनी बेच बोच करके जो भी है अपना 1 करोड़ चुका देगा। लेकिन अब अगर सक्सेस होता तब तो रिलायंस कंपनी को या अडानी को अरबों का फायदा होता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब टेक्निक ये लगा दिया है कि भाई जिसके बिहाफ पर घूस दिया है इंडिविजुअल, उस कंपनी पर या उस ऑर्गेनाइजेशन पर फाइन लगाया जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हमें पर्सन पर फाइन लगाना होगा तो हम 1 करोड़ का लगाएंगे, लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे लगाएंगे, अगर फाइन लगाना होगा तो 1 अरब का फाइन लगाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती थी, अपने सर्वेंट से, मतलब छोटे छोटे ऑफिसरों से घूस दिलवाती रहती थी। जब आ जाता था उस तरह की बात तो उनको सीज एंड फायर, चलो भाई तुम्हारी नौकरी से खत्म, आज 40-50 लाख लो और जाकर के दे देना, कहानी खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब हमारे सेक्शन 17A was inserted to protect public servant whose decision is related to recommendations. This is another
important topic. As you know that when in 2012, 13, 14, when at that time I was the strong supporter of the बीजेपी. मतलब उस समय बीजेपी के लिए आप कहिए किसी को गोली मार दीजिए तो आदमी वो भी कर सकता था, क्योंकि हम लोग के हॉस्टल में कांग्रेस के एक वो मिनिस्टर आए हुए थे और इतना गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ कि उनके सामने हम लोग मोदी मोदी चिल्लाने लगे, उनको मतलब कि मतलब डीएस कोठारी हॉस्टल में स्पीच देना मुश्किल कर दिया गया था। तो इस तरह का गुस्सा था। तो उसमें होता क्या था, टाइम के हिसाब से चेंज होता था। उस समय इतना प्रॉब्लम आ गया था उस टाइम कि होता क्या है कि देखो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं, करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस लगते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाकर निकल जाते हैं। अब जो छोटा छोटा ऑफिसर होता है जिसके सिग्नेचर पर काम होता है, देखो सरकारें आती हैं जाती हैं, रियल सरकार कौन चलाता है? रियल सरकार ऑफिसर चलाता है। जो यूपीएससी आईएएस ये सब जाते हैं वही रियल सरकार चलाते हैं। ये जो आई मान लीजिए मोदी आ गए, मनमोहन जी आ गए, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है, ऊपरी बनावट, स्ट्रक्चर वही चलता है। अब तुम कहो कि इंडिया अमेरिका और इंडिया की पॉलिसी चेंज हो जाएगी, अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए पॉलिसी लमसम वही चलती रहेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए वही पॉलिसी चेंजेस चलती रहेंगी। भारत में कोई भी आ जाए बहुत हल्का फुल्का चेंज जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो हुआ क्या उस तरह के मामले में, उस दौर में जब करप्शन के चार्जेस जब लगने लगे तो कई ऑफिसरों पर वो लग गया, मतलब करप्शन के चार्जेस लग गए। हम लोग एफआईआर पढ़ाते भी हैं, बेल का चैप्टर पढ़ते हैं। तो हुआ कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे उनके पास पैसा था, वो सब क्या करते थे कि हाई निकल जाते थे बेल ले वो करके। और जो छोटे छोटे ऑफिसर थे इनके पास पैसा ही नहीं है, अब कहाँ से भाई राम जेठमलानी को इंगेज करें। मान लीजिए कि मिस कनिमोझी फंसी, करुणानिधि की बेटी थी, तो कनिमोझी का केस कौन लड़ा? मिस्टर राम जेठमलानी जी केस लड़ रहे थे। तो भाई ठीक है कि कनिमोझी के पिता के पास इतना पैसा है, वो 10 करोड़ 15 करोड़ दे देंगे, बिल लेकर के निकल जाएंगे। अब लेकिन छोटा छोटा ऑफिसर जो था जिसको 2-3 लाख से नौकरी थी, जो सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी था, अब उसके पास कहाँ से पैसा आएगा, कितना बड़ा बड़ा वकील रखे। तो हुआ क्या कि सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकल गए और जो ऑफिसर जो थे सारे के सारे फंस गए। अब इस तरह से सारे ऑफिसरों में एक माइंड बन गया, यार देखो हम लोग को कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेना है ताकि फ्यूचर में एफआईआर हो जाए, अदरवाइज हम लोग की पेंशन रुकेगी, हम लोग को बेल नहीं मिलेगा, हम लोग को जेल हो जाएगी और हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अब हुआ क्या कि जितने ऑफिसर थे उनका ऑफिसरों का भी एक ग्रुप होता है, उनके माइंड में एक मैसेज चला गया कि भाई कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे फ्यूचर में हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए। अब जब मिस्टर मोदी गवर्नमेंट की जो सरकार बनी तो शुरुआती दौर में तो इन्होंने भी देखा कि वही था। अब कोई भी ऑफिसर सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेता था, कोई डिसीजन ही नहीं लेता था। आपका है कि फाइल में सिग्नेचर करना है नहीं करना है, बस जो भी है, और मतलब कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले नहीं रहा था। क्योंकि देखो रिकमेंडेशन होगा, रिकमेंडेशन होगा तो या तो भाई जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी का सिलेक्शन है, एक है पार्थ है एक है अखिलेश है, अब 2 में से एक सीट है तो ऑफकोर्स एक ही आदमी पॉइंट होगा। और मान लीजिए कि हमने अखिलेश को पॉइंट कर दिया तो ऑफकोर्स पार्थ एग्री होगा, एग्री होगा तो हमारे खिलाफ चैलेंज कर देगा, हमारे खिलाफ चैलेंज हो जाएगा तो भाई एफआईआर हो जाएगी, तो हम पूरी करियर खराब। तो मैं क्या करूंगा कि हमारे पास सिलेक्शन का आ गया कि किसको अपॉइंट किया जाए, पार्थ को कि अखिलेश को, आप अपना ओपिनियन दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना कुछ ओपिनियन दूंगा ही नहीं, फाइल एज इट इज पड़ी रहेगी। ठीक है, 1 साल बाद मेरा यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिर जो आएगा उसके यहाँ 1 साल पड़ी रहेगी, एज इट इज चलता रहा। ये टेंडेंसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि भाई कोई भी ऑफिसर हो अगर कोई भी रिकमेंडेशन पे डिसीजन लेता है तो न ही उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, न ही इंक्वायरी होगी और न ही इन्वेस्टिगेशन होगा। अब आप कहेंगे कि सर इंक्वायरी और इंक्वायरी में क्या अंतर है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो आपको भी मालूम है कि पुलिस करती है, इंक्वायरी भी आपको मालूम है कि भाई जजेस करते हैं, लेकिन इंक्वायरी कौन करता है? देखिए मुझे तो सीआरपीसी का एक सेक्शन मालूम है 174 में इंक्वायरी के बारे में लिखा हुआ कि इंक्वायरी कौन करेगा, वहां तो मजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे इंक्वायरी और इंक्वायरी में लीगल सेंस में डिफरेंस नहीं मालूम है, इन दोनों में मुझे डिफरेंस नहीं मालूम है। लीगल सेंस में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मालूम है, लेकिन इंक्वायरी और इस दोनों में नहीं मालूम है।
बाकी मैं रात को ट्राई करूंगा, कहीं मिल जाएगा तो कल बता दूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप भी थोड़ा एफर्ट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो मतलब ये हो गया कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो न ही आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी बैठाई जाएगी, न ही कोई इंक्वायरी कराई जाएगी, और न ही कोई इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन उस काम के लिए जो आपने पब्लिक सर्वेंट थे और एट अ टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ पब्लिक फंक्शंस और ड्यूटीज, और वह रिकमेंडेशन आपने कब किया है, आपने पब्लिक फंक्शंस या ऑफिशियल फंक्शंस या ड्यूटीज परफॉर्म करते किया है। जैसे मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति की दो पर्सनालिटी होती है, एक पब्लिक सर्वेंट होता है, प्राइवेट सर्वेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस से छोड़ करके अपने घर पे आ गया, अपने वाइफ के साथ मतलब इंजॉय कर रहा हूँ, बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, बाकी जो काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं घर में आकर के पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ? या घर में आकर के वाइफ से डिस्प्यूट हो जाए, वाइफ के साथ मारपीट हो जाए और वाइफ हमारे खिलाफ FIR करना चाहे, तो क्या हमें सेक्शन 17 का बेनिफिट मिलेगा? क्या हमारे खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी पत्नी को मार रहा था या पत्नी जब मुझे मार रही थी, उस टाइम जो कुछ भी हो रहा था वहां पे ऑफिशियल फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहां पे मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं था। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट द पब्लिक सर्वेंट, एट दैट टाइम आई वॉज नॉट द परफॉर्मिंग द पब्लिक ड्यूटीज। तो इस तरह के मामले में जो पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटीज में नहीं आएगा उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स क्या करता है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक करता है, जितना कि नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा से कह चुका हूं कि भाई हर एक आदमी की दो पर्सनालिटी होती है, एक पब्लिक सर्वेंट की पर्सनालिटी होती है और घर में आकर के अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। और जब भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है लॉ का, वो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते और व्हेन एट दैट टाइम व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग द पब्लिक ड्यूटीज, ये सबसे अंतर समझना होगा, ठीक ना? इसीलिए जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि स्टूडेंट सोचता है कि नहीं कैसे, देखिए आपका और हमारा रिलेशन पब्लिक ड्यूटी के अंतर्गत आता है, हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। हम आपको कैसा पढ़ाते हैं इस पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप इस पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बाकी जो कुछ काम हम इधर उधर करते हैं वो हमारा अपना पर्सनल लाइफ है, उस पर आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो हमारा पर्सनल लाइफ है। तो इस पर आपको गवर्नमेंट कहती है जो काम आप ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए किए हैं, रिकमेंडेशन किए हैं, उसी मामले में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। सिवाय एकमात्र एक्सेप्शन है, एकमात्र एक्सेप्शन क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रीवियस सैंक्शन ले ले, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रीवियस सैंक्शन ले लें, अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट से प्रीवियस सैंक्शन ले लें, तब उसके खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन इसका एक माइनस है। मान लीजिए कि हम मिस्टर मोदी गवर्नमेंट के शासन में ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर हैं, अब हमने करप्शन कर दिया, अब उसी करप्शन में मान लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, अब उनको मालूम है और हमारे खिलाफ किसी ने चार्ज केस फाइल करना चाह रहा है, अब उनको मालूम है कि अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी के खिलाफ FIR होगा तो कल को मेरा भी नाम आ जाएगा, वो कभी सैंक्शन देंगे ही नहीं, या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी काम के लिए सैंक्शन नहीं देंगे। मतलब ये कहने का मतलब है, ये ब्लेम लगाया जाता है गवर्नमेंट पे कि अगर जो आपका ऑफिसर है आपके डायरेक्शन पे करप्शन किया है, सैंक्शन आप देंगे ही नहीं, वो ऑलरेडी आप प्रोटेक्ट करते रहेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ऑफिसर्स, उसके मंत्री करप्शन में उनका नाम नहीं आता है, सिर्फ अपोजिट पार्टी वालों के नाम के पर ही नाम आता है। ये इस तरह का प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं तो अरेस्ट करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अरेस्ट किए जा सकते हैं, बाकी चीजें अलग है। अब सेक्शन 19 क्या है, सेक्शन 19 में क्या क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं, हम भी बस 2 मिनट ही लेंगे, हम भी बेचैन ही हैं कि तुम सब तो स्पॉज करके इधर उधर जा सकते हो कि हम कहाँ जाएंगे। अमेंडमेंट इन सेक्शन 19 कह रहा है, आप इसमें पहले ये क्लियर था कि सेक्शन 19 में कहता है कि सैंक्शन लेकर के आप किसी पर ट्रायल चला सकते हैं। तो पहले 5 सेक्शन में प्रोटेक्शन था, 7, 10, 11, 13, 15, लेकिन अब कहाँ पर है, अब 5 सेक्शन पे नहीं है, सिर्फ 4 सेक्शन में ही प्रोटेक्शन है, 7, 11, 13, 15।
अब 7 11 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 11 13 में कितने का अंतर है? 2 का है। और 13 14 में कितने का अंतर है? 2 का है। 7 11 13 15 इन 4 सेक्शन में ही if any persons commits the crime which is punishable either under section 7 11 13 or 15, in that case no proceeding can be started against him unless and until previous sanction is given by central government or state government or the prescribed authority as the case may be. Earlier protection was for the 5 sections, but now there is only 4 sections. Earlier word was that who is employed. पहले क्या होता था कि जो पब्लिक सर्वेंट रहता था उसमें सैंक्शन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जो रिटायर्ड हो गया उसके ऊपर केस चलाने के लिए सैंक्शन की जरूरत है कि नहीं है, इस पर कंट्रोवर्सी था। क्योंकि वर्ड जो था, पहले का जो वर्ड था सिर्फ लिखा हुआ था कि हु इज एम्प्लॉयड। पहले क्या था? हु इज एम्प्लॉयड। वाज मिसिंग था। वाज क्या था? मिसिंग था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये कर दिया गया कि या तो आप एम्प्लॉयड हैं, नौकरी करते हुए एफआईआर हो जाए, या आप नौकरी कर लिए, रिटायर हो गए, लेकिन नौकरी के दौरान जो काम किए थे उस मामले में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, या इज या वाज, दोनों मामले में आपको प्रोटेक्शन देगा। मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में सरकार कहती है कि भाई तुम लोग डिसीजन लो, तुम लोग डरो मत कि हम रिटायर हो जाएंगे तब हमारे खिलाफ केस कर देगा। नहीं, तुम रिटायर हो भी जाओगे, लेकिन जो काम पहले कर चुके हो रिटायरमेंट के मामले में उसमें हम प्रोटेक्शन देंगे। तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी जब तक कि हम सैंक्शन न दे दें। और सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कब? एक इंक्वायरी कराएगी क्या प्रिलिमिनरी केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर प्रिलिमिनरी केस नहीं बनता है तो इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। लास्ट सेक्शन है भाई, बस ये है कि सेक्शन 29 इंसर्ट किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया कि दे कैन मेक एनी लॉ। And in the next class, I will discuss the Kalicharan Mahapatra versus State of Odisha. And I hope that you will read and remember and enjoy the class. Thanks everyone for attending the class. ठीक है, stop recording भाई।